بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ زرینہ کے ہاتھوں سے گن چھوٹ گئی۔ وہ اپنے زخمی بازو پر ہاتھ رکھ کر کرانے لگی۔ حسینہ نے کہا، اجنبی کو یہاں سے نکالنے کا حکم نہ دو، انصاف کا تقاضا پورا ہونے دو، جو میدان ہارے گا وہی یہاں سے جائے گا۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، مجھ اجنبی سے محبت کرنے والے دوستو، میرا مقابل زخمی ہو چکا ہے، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یعقوب ہمدانی نے زرینہ کی گری ہوئی گن اٹھا کر کہا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سماتی، میرے کارنیول میں دو شاہ زور نہیں رہ سکتے، کسی ایک کو رہنا ہے۔ اس نے زرق کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، ایک بار تم نے سب کے سامنے میرا گریبان پکڑا تھا، اس کارنیول کے مالک کو ذلیل کیا تھا، تم بہن بھائی مجھے آقا نہیں ایک مجبور غلام سمجھتے تھے۔ اس نے زرق کی ایک ٹانگ پر گولی ماری، وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ ہمدانی نے زرینہ سے کہا، ایک بار تم نے اپنے بھائی کی موجودگی میں مجھے تمانچہ مارا تھا، میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ بھائی کے ذریعے مجھ پر حاوی رہنے والی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اس نے زرینہ کا نشانہ لیا، وہ گڑ گڑانے لگی، نہیں مجھے گولی نہ مارو۔ وہ قریب آ کر اس کے منہ پر تمانچہ مارتے ہوئے بولا، اس روز نہ تم نے مجھے تمانچہ مارا تھا، نہ آج میں نے تمہیں مارا ہے۔ تمہیں طاقت مارتی ہے، اس لیے چند روز طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طاقت بڑی ہرجائی ہے، کبھی تمہارے پاس رہتی ہے، کبھی اچانک تم پر تھوکنے کے لیے ہمارے پاس چلی آتی ہے۔ پھر اس نے کہا، ان بہن بھائی کے 3 گنڈے حمایتی ہیں، وہ سٹیج پر جائیں اور اپنے پہلوان کو اٹھا کر میرے کارنیول سے دور لے جائیں۔ وہ تینوں حمایتی سٹیج پر سے زرق کو اٹھا کر لے جانے لگے۔ ہمدانی نے زرینہ کو دھکا دیتے ہوئے کہا، جاؤ اور کبھی ادھر نظر نہ آنا، اس بار تم بھائی کے ساتھ زندہ جا رہی ہو، اگلی بار موت تم لوگوں کو لے جائے گی۔ وہ دونوں اپنے 3 گنڈوں کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ کارنیول کے تمام ملازمین اب کھل کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، کوئی مجھ سے مصافحہ کر رہا تھا، کوئی مجھے گلے لگا رہا تھا۔ وہ حسینہ دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کا نام سمورا زوسیکوف تھا، کارنیول میں رائفل شوٹنگ سٹال کی انچارج تھی۔ اس کا تعلق کسی تنظیم سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی کی اعلی کار تھی۔ میں لوگوں سے مصافحہ کرنے کے دوران سمورا کے دماغ میں جھانک آیا۔ ضروری معلومات سے مطمئن ہو کر یعقوب ہمدانی کو دیکھا۔ وہ قریب آ کر بولا، تمہیں داد دینے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، تمہاری یہ بات میرے دل کو لگ گئی ہے کہ میں نے آج فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی، خداوند کریم نے دعا قبول کر لی، واقعی تمہیں نجات دہندہ بنا کر میرے پاس بھیجا گیا ہے، اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، شام کا اندھیرا پھیل رہا ہے، کارنیول کا دھندا شروع کرو، اپنی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ یعقوب ہمدانی نے 2 چوکیداروں کو حکم دیا، ٹکٹ کاؤنٹرز کھول دو، لوگوں کو اندر آنے دو۔ دونوں چوکیدار چلے گئے۔ مجھے اپنے پیچھے مترنم سی آواز سنائی دی، ہیلو بابر۔ میں نے گھوم کر دیکھا، سمورا زوسیکوف مسکرا رہی تھی۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے وہ گداز ہاتھ تھام لیا۔ اچھی خاصی اوور کوٹ پہننے والی سردی تھی، اس کے باوجود سمورا کا ہاتھ گرم تھا۔ وہ 28ویں برس کی گرمی عمر سے گزر رہی تھی، لیکن اب تک شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی مرد سے دوستی کی تھی۔ ایسا کیوں تھا، یہ تفصیل سے چور خیالات پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا، جس کا موقع ابھی نہیں ملا تھا۔ وہ بولی، تم نے آج مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، احسان تو تم نے کیا ہے، زرق کو گولی مار کر اسے زخمی کر کے فوراً ہی جنگ ختم کرا دی۔ اگر تم اسے مار مار کر نیم مردہ نہ کرتے تو میں اس پر گولی چلانے کا حوصلہ نہ کر پاتی۔ اس شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ آج رات میرے خیمے میں آئے گا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، اگر وہ آ جاتا تو کیا کرتی؟ میں نے ایک پسٹل اور ایک خنجر تکیے کے نیچے اور پیروں کی طرف چھپا کر رکھ دیا تھا۔ یہ قسم کھائی تھی کہ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، ناکام ہوئی تو خودکشی کر لوں گی۔ میں نے پھر مسکرا کر کہا، خودکشی کی نوبت نہیں آئی، تم کسی خوش نصیب کے لیے بچ گئی ہو۔ میری زندگی میں کسی خوش نصیب یا بد نصیب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو تم فطری تقاضوں کے خلاف بول رہی ہو۔ اس نے میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر کہا، تم نے یہ ہاتھ بہت دیر رکھ لیا، اب واپس کر دو۔ میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، تم نے اپنی خوشی سے میرے ہاتھوں میں دیا تھا، میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا، تم سے بھی ایک نگاہ کرم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ ویسے جب کبھی سوچنا ہو تو یہ ضرور سوچنا کہ گیا وقت نہیں ہوں کہ بلاؤ تو پھر نہ آ سکوں۔ اسی وقت یعقوب ہمدانی تیزی سے چلتا ہوا آیا، پھر بولا، سمورا تم جاؤ، پھر کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔
वो हमें सवालिया नज़रों से देखती हुई चली गई। हमदानी ने कहा, देख रहे हो बाबर, अभी तक कार्निवल का फाटक नहीं खुला है, टिकट काउंटर्स बंद हैं। क्यों बंद हैं? बाहर से तमाशाई क्यों नहीं आ रहे हैं? जिस शख्स ने मुझसे कहा था कि मैं उसके 6 बंदे अपने कार्निवल में मुलाजिम रख लूं, उसने यहाँ गुंडागर्दी शुरू कर दी है। काउंटर्स पर गुंडे हैं, वो किसी को टिकट खरीदने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा, यह महज सिनेमाओं और थिएटरों में होने वाली गुंडागर्दी नहीं है, इसके पीछे सियासत और गैर मुल्की एजेंटों की चालें हैं। किसी भी गैर मुल्की सियासी तंजीम को तुम्हारे कार्निवल से बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे, इसलिए वो शख्स चाहता है कि यहाँ सिर्फ उसके 6 बंदे ना रहें, बल्कि पूरा कार्निवल उसके कब्जे में आ जाए। हमदानी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, उस शख्स का मुतालबा है कि मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या वाकई? हाँ, वो कहता है तुम्हारा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर नहीं बल्कि फरहाद अली तैमूर है। मैं यकबारगी अंदर से अलर्ट हो गया। बैंड या बाजे की आवाज़ सुनाई दी। कार्निवल के अहाते का गेट खुलने लगा। बैंड बाजे वाले अपनी धुन बजाते हुए लेफ्ट राइट के अंदाज में चलते हुए अहाते में दाखिल हो रहे थे। उनके पीछे 2 गाड़ियां थीं, उनमें मुसल्लह अफराद थे। एक गाड़ी की छत पर एक शख्स गन लिए खड़ा था। उसने हाथ उठाकर एक चुटकी बजाई। उसके साथ ही चारों तरफ अहाते की दीवार पर गनमैन चढ़ते हुए दिखाई दिए। वो सब छुपे हुए थे, अब जाहिर हो रहे थे। गाड़ी की छत पर खड़े हुए शख्स ने दोनों हाथों से एक सिग्नल दिया। उसके साथ ही अहाते की दीवार पर से चारों तरफ हवाई फायरिंग हुई, फिर खामोशी छा गई। वो शख्स बुलंद आवाज से बोला, यह हवाई फायरिंग एक वार्निंग है। अगर किसी ने मुकाबला करने की हमाकत की तो कार्निवल के एक एक फर्द को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। वो दूर से मेरी तरफ उंगली करते हुए बोला, ये मौजूदा सदी का सबसे खतरनाक शख्स फरहाद अली तैमूर है। इसके सामने रूस और अमेरिका हार जाते हैं, हत्ता कि इसके पास आकर मौत भी हार जाती है। वो अपना सीना ठोंकते हुए बोला, मैं पहला शख्स हूं कि इस टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग के अंदर जाकर अपनी ख्याल ख्वानी की हुकूमत कायम करने वाला हूं। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, लोगो, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ जख्मी करूंगा, फिर ये मेरा ताबेदार बन जाएगा, अपनी मर्जी से मेरा गुलाम बनकर यहाँ से जाएगा। इसलिए तुम लोगों को हमारे मामले में ना एतराज़ करना चाहिए, ना हमारे मुकाबले पर आने की हमाकत करनी चाहिए। उसने गन सीधी की, फिर मुझसे कहा, फरहाद, तुम ये मालूम करने के लिए बहुत बेचैन होगे कि मैं नया ख्याल ख्वानी करने वाला कौन हूँ और किस मुल्क या किस तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने उसे बातों में उलझाने के लिए कहा, मुझे असीर करने से पहले बेहतर है कि मुझे अपनी हिस्ट्री बता दो। तुम्हारी खोपड़ी के अंदर आकर सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट देता हूं कि तुम अच्छी तरह सिचुएशन को समझ लो। ख्याल ख्वानी के ज़रिए अपनी पूरी फैमिली को मदद के लिए बुला लो, और ये वक्त दुआ का भी है, लेकिन ऐसा बुरा वक्त है कि खुदा भी दुआ कबूल नहीं करेगा। इसमें शुबा नहीं था कि उसने ज़बरदस्त मुहासरा किया था। तकरीबन 25-30 मुसल्लह अफराद चारों तरफ अहाते की दीवार पर खड़े हुए थे। मैं कार्निवल के खुले हुए हिस्से पर एक स्टेज पर था। वहाँ से किसी तरफ भी भागते वक्त गोलियों की बौछार से बचने और छुपने के लिए कोई आड़ नहीं थी। मुझे यकीन हो गया कि इन हालात में अपनी कोशिशों से बचना नामुमकिन है। फिर भी मैंने अपनी सी कोशिश की। उससे कहा, सुनो, मैंने फरहाद की फैमिली से अभी राबता किया था, उन्हें अपनी हालत ज़ार बताई थी। वो कहते हैं बचाव की कोई सूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे हाथों ज़ख्मी होकर अपना दिमाग तुम्हारे हवाले कर देना चाहिए। उस शख्स ने कहा, तुम मुझे ये समझाना चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे असीर होने की कोई परवाह नहीं? यानी तुम फरहाद नहीं हो? अगर फरहाद होते तो तुम्हारे लोग अभी जान की बाजी लगा देते। मैंने कहा, मैं अपनी ज़ुबान से फरहाद होने या ना होने का यकीन नहीं दिलाऊंगा, और ना ही ये तुम यकीन करोगे। मेरा ख्याल है 1 मिनट की वो मोहलत ख़त्म हो चुकी है। उसने अपनी गन से मेरी एक टांग का निशाना लेते हुए कहा, मैं सिर्फ ज़ख्मी कर रहा हूँ, अगर ज़रा भी हिलोगे तो जान भी जा सकती है। मेरे पास खड़ा हुआ याकूब हमदानी बोला, तुम्हारा यह दुश्मन समझ में नहीं आया? जब यह तुम्हें जान से मार सकता है तो फिर जख्मी क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब मिलने ही वाला था। फायरिंग की आवाज़ गूंजी, गोली सनसनाती हुई आई। मैं एकदम से उछलकर हमदानी पर आ गिरा। एक चीख बुलंद हुई, फिर हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए स्टेज पर गिर पड़े। ये दुरुस्त है कि यह दुनिया एक स्टेज है। हम सब पैदा होकर मरने तक एक्टिंग करते हैं, फिर स्टेज से हमेशा के लिए चले जाते हैं। दुश्मन जान ने मुझे हमेशा के लिए रुखसत नहीं किया। मैंने दिमाग में उसकी सोच की लहरों को सुना। वो कहे लगा रहा था और कह रहा था, मैं दुनिया का पहला ख्याल ख्वानी करने वाला हूँ कि फरहाद के दिमाग में फतह के झंडे गाड़ रहा हूँ। वो फिर एक बार कहा लगा कर बोला, अफसोस फरहाद,
آج سے تمہاری غلامی کا دور شروع ہوتا ہے۔ بدی کو کچلنے اور نیکی کا بول بالا رکھنے کے لیے مخصوص ایمان افروز طریقے ہیں، اسی طرح نیکی برباد کرنے اور بدی کا سر بلند رکھنے کے لیے بھی بے شمار ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں۔ ہم انسانوں کی مذہبی دنیا میں بھی ایسی چالیں چلی جاتی ہیں۔ اگر ایک مذہب بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہو تو اس کے مقابلے میں دوسرے مذہب کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس دوسرے مذہب میں طرح طرح کی دلچسپیاں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ کمزور عقیدے کے لوگ کشاں کشاں آتے رہیں اور اپنے بڑھنے پھلنے پھولنے والے مذہب کی نفی کرتے رہیں۔ ابھی کچھ زیادہ صدیاں نہیں گزریں، ہندوستان میں شہنشاہ اکبر نے ایک نئے مذہب دین الہی کی داغ بیل ڈالی تھی۔ رانی جودھا بائی سے شادی کر کے اس روایت کا آغاز کیا تھا کہ ہندو بھی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں بھارت کے سیکولر پالیسی کے مطابق آج بھی ہندو اور مسلمان کہیں کہیں ایک دوسرے کی عورتوں سے شادیاں کرتے پائے جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں کے مسلمان راسخ العقیدہ ہیں اور مستحکم ایمان نہیں رکھتے، بلکہ ایسے ایمان والے ہیں کہ کفر کے نرغوں میں اسلام کو سدا بہار بنا کر رکھتے ہیں۔ قباحت یہ ہے کہ دین الہی کے نام پر سیکولرزم کا بیج بو دیا گیا تھا۔ اب ایک کمزور عقیدہ مسلمان کو ہندو مذہب کی حسینہ مل رہی ہو تو وہ انکار کیوں کرے گا؟ یا اپنی بیٹی یا بہن ہندو کو دینے سے اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط ہوتی ہو تو وہ اقتدار کی طرف کیوں نہیں جائے گا؟ میں اپنی داستان کی طرف آتا ہوں۔ ازبیکستان میں ایسے ہی ایک نئے مذہب کا پرچار کرنے والی جماعت موجود تھی۔ اس جماعت کا نام متحدہ مذہبی فرنٹ تھا اور اس کے مذہب کا نام دین انسان تھا۔ ان کی باتیں بڑی خوبصورت تھیں۔ وہ کہتے تھے مذہب وہ ہے جو انسان کو تہذیب کے دائرے میں رکھتا ہے، اور تہذیب اسی صورت میں قائم رہتی ہے جب تمام انسان ذات، برادری اور مذہبی تعصب سے بالا تر ہوں۔ یہ دین انسان ایسا مذہب ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے۔ دین انسان کے ماننے والے اپنے اپنے گھروں اور عبادت گاہوں کی چار دیواریوں میں ہندو، یہودی، عیسائی اور مسلمان ہوتے ہیں، لیکن سڑکوں، بازاروں، دفتروں، کلبوں، تفریح گاہوں اور اسمبلیوں میں صرف انسان ہوتے ہیں۔ سرعام محفلوں اور مجلسوں میں کسی کا کوئی ذاتی مذہب نہیں رہتا، سب کا مشترکہ مذہب انسانیت ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ باتیں حقیقتاً دانشمندانہ ہیں، لیکن یہ حقیقت پسندی اور نام نہاد انسانیت ازبیک مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تھی۔ روسی حکمرانوں کے دور میں ازبیکستان کے عوام صرف نام کے مسلمان رہے تھے۔ انہیں مذہبی فرائض ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ وہ شراب پیتے تھے اور سرعام ناچتے گاتے تھے۔ راستوں اور تفریح گاہوں میں اپنی پسند کی عورتوں سے بغل گیر ہوتے تھے۔ ایسے میں کہیں ایک نئے مذہب دین انسان نے یہ تبلیغ کی کہ شراب اور عورت پر پابندیاں صرف گھروں اور مسجدوں تک رہیں۔ باہر وہ مسلمان نہیں، دین انسان کے نیک بندے ہیں جو دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔ ان کے ہاں شراب اور پرائی عورت جائز ہے، اس لیے مسلمان بھی صرف انسان بن کر ایسی رنگ رلیوں میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ شراب اور شباب میں بڑی کشش ہوتی ہے، وہ دل سے کی ہوئی توبہ توڑ دیتی ہے۔ ہندوؤں میں شیو پرساد کے نام پر بھنگ پینے اور پوجا کے نام پر عورتوں کو رقص کرنے کی اجازت ہے۔ عیسائیوں نے شراب اور شباب کو تمام مغربی ممالک میں دعوت عام کی طرح پھیلا رکھا ہے۔ یہودی بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں، صرف اسلامی ممالک میں ان خرافات کی اجازت نہیں۔ چونکہ ازبیکستان میں ابھی اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوئے تھے، اس لیے پہلے ہی اس کا توڑ کرنے کے لیے وہاں متحدہ مذہبی فرنٹ نامی جماعت دین انسان لے کر آ گئی تھی۔ اس متحدہ مذہبی فرنٹ میں ہندو، یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ بکاؤ مسلمان بھی تھے۔ یہ معاملہ صرف یہیں تک ہوتا تو یہ متحدہ مذہبی فرنٹ کامیاب نہ ہوتی، کیونکہ ازبیکستان کے مسلمان تقریباً 70 برس تک اسلام سے دور رکھے جانے کے باوجود کٹر مسلمان تھے۔ وہاں کی تمام مسجدوں اور درسگاہوں میں مسلمان نمازیں پڑھتے اور قرآنی تعلیمات حاصل کرتے کثیر تعداد میں نظر آتے تھے۔ وہاں ایمان افروز مناظر دیکھ کر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ متحدہ مذہبی فرنٹ والے انہیں کبھی ایمان کے راستے سے نہیں ہٹا سکیں گے، لیکن ایک بڑا خطرہ تھا، اور وہ خطرہ ٹیلی پیتھی کا تھا۔ اس متحدہ مذہبی فرنٹ میں ایک نہیں 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ اس دین انسان کے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے متعلق مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا، لیکن اپنی داستان کے تسلسل کے لحاظ سے یہ حقائق پہلے بیان کر رہا ہوں۔ اگر قارئین میری داستان کے پچھلے حصے پر نظر دوڑائیں تو انہیں 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے یاد آئیں گے۔ ایک کا نام راکی ہڈسن، دوسرے کا نام جیری ہاک اور تیسری باربرا نکسن تھی۔
वो तीनों कभी ब्रेन मास्टर के कब्जे में थे। बाद में मैंने उन तीनों को ट्रैप करके एक तारीख कैद खाने में पहुंचाया था। मैंने उन तीनों को अपना ताबेदार बनाकर बाद में आज़ाद छोड़ दिया था। ये इत्मीनान था कि वो दुनिया के जिस गोशे में भी जाएंगे मेरे मामूल बनकर रहेंगे और मुझे अपनी खोपड़ियों के अंदर आने से नहीं रोक सकेंगे। लेकिन वो मेरी अदीम अलफुर्सती या गफलत के बायस आज़ाद हो गए थे। मुझे एतराफ़ है कि मैंने अब तक जितने टेलीपैथी जानने वालों को अपना मामूल और ताबेदार बनाया है, उनमें से सिर्फ मरीना पर तवज्जो देता रहा हूँ और हमेशा ये याद रखता रहा हूँ कि उस ख़तरनाक लड़की पर अगला तनवीमी अमल कितनी मुद्दत के बाद करना है, इसलिए वो आज भी मेरी गिरफ्त में थी। बहरहाल जिन 3 ख्याल ख्वानी करने वालों को मैंने ख़तरनाक नहीं समझा था और जिन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, वही अज़ाब जान और दुश्मन ईमान बनकर एक नई हिकमत अमली के साथ वहाँ आए थे। वो नए मज़हब दीन इंसान का सुतून थे। पुख्ता अकीदे रखने वाले मुसलमानों के दिमागों में घुसकर उन्हें नए दीन की तरफ माइल कर सकते थे। उसका सबसे तशवीशनाक पहलू ये था कि ये टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन इस आज़ाद इस्लामी मुमलिकत के उन उलमाए कराम को ट्रैप कर सकते थे जो वहाँ का आइन बनाने वाले थे। अगर उन पर तनवीमी अमल किया जाता तो वह इस्लामी आइन ना बना पाते। इस आइन में नए मज़हब दीन इंसान के फलने फूलने के लिए सहूलियात पैदा करते और बेचारे उलमा को पता भी ना चलता कि वो सहरज़दा होकर दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसा कर रहे हैं। ये जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं, इन्हें सबसे पहले अपने बचाव की फ़िक्र होती है। ये पहले यही मालूम करते हैं कि फ़रहाद और टेलीपैथी जानने वाली उसकी पूरी फैमिली किन ममालिक में क्या करती फिर रही है। उन तीनों ने उज़्बेकिस्तान में आकर पहले यही मालूम किया था कि मैं इस इस्लामी मुल्क में कोई दिलचस्पी ले रहा हूँ या नहीं। ये मालूम करने के लिए उन्होंने फ्रांस से आने वाली टीम के तमाम अफराद को अपनी नज़रों में रखा, क्योंकि मेरा और मेरी फैमिली का फ्रांस से गहरा ताल्लुक़ रहता है। उस टीम का लीडर जैकी हार्प था। इब्तदा में उन तीनों टेलीपैथी जानने वालों को ज़रा इत्मीनान हो गया कि फ़्रांस की टीम में हमारा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं, लेकिन एक मामला उनके लिए तशवीशनाक था, और वो ये कि वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम करने वाले जितने मुसलमान अकाबरीन थे, वो सब पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेते थे। ये मानने वाली बात नहीं थी कि वो सब योगा के माहिर होंगे, अलबत्ता ये समझ में आने वाली बात थी कि फरहाद या उसके ख्याल ख्वानी करने वाले साथियों ने उन मुसलमान अकाबरीन पर तनवीमी अमल करके उनके दिमागों को लॉक कर दिया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अभी ये बात मेरे इल्म में नहीं थी, वरना मैं ये ज़रूर मालूम करता कि उस मुल्क के अकाबरीन नए मज़हब के शरपसंदों से किस तरह महफूज हैं। एक बार इस सिलसिले में मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट के अहम अफराद का इजलास हुआ। उस इजलास में 3 टेलीपैथी जानने वाले रॉकी हडसन, जेरी हॉक और बारबरा निक्सन के अलावा 2 ईसाई फादर, एक यहूदी रबी और एक हिंदू हिप्नोटिज्म का माहिर था। उनकी तादाद 7 थी, लेकिन वहाँ 5 मौजूद थे। जेरी और बारबरा जिस्मानी तौर पर हाजिर नहीं थे, इस मीटिंग में ख्याल ख्वानी के ज़रिए शरीक थे। एक फादर ने कहा, हम 7 अफराद ने मजहबी फ्रंट कायम किया था। आज हमारी इस तंजीम में 70 अफराद हैं जो यहाँ के बड़े शहरों ताशकंद, समरकंद और बुखारा में नए मज़हब की तबलीग कर रहे हैं। यहूदी रबी ने कहा, अमेरिका, रूस, इसराइल, भारत और दूसरे मुल्कों ने हमें बड़ी बड़ी ऑफरें दी हैं। ये अपनी तर्ज की एक ऐसी तंजीम है जिसकी पुश्त पर कोई छोटा या बड़ा मुल्क नहीं। दूसरे ने कहा, जी हाँ, हमने ये तंजीम सियासी जंग लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ मजहबी जंग जारी रखने की खातिर कायम की है। दुनिया का नक्शा उठाकर देखो तो इस्लामी ममालिक की तादाद बढ़ती हुई नज़र आती है। बड़े बड़े मगरबी ममालिक इन इस्लामी मुल्कों को मोहताज और पसमानदा रखते हैं। इन्हें आपस में लड़ाकर इनकी तादाद कम करते हैं, फिर भी ये कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं। दीन इस्लाम को उसकी सतह से गिराने और मुसलमानों को दीन से फेरने का बस यही तरीका है जो हमने इख्तियार किया है। बेशक जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह एक और नया मज़हब 1400 साल पुराने मज़हब को काटेगा। यह ऐसी जंग है जिसमें कोई आतिशी असलहा इस्तेमाल नहीं होगा। हमारी तंजीम में 40 हसीन और नौजवान लड़कियां हैं। मुसलमानों को इस्लामी जमहूरिया की जन्नत से निकालने के लिए और हवाजादियां आ जाएंगी। और ये बात हमारे हक में है कि अभी इस मुल्क में शराब पर पाबंदी आयद नहीं की गई। ओपरा हाउस और नाइट क्लब्स वगैरह मौजूद हैं, हम इन क्लबों में इजाफा करेंगे। रबी ने कहा, मैंने अमेरिका और इसराइल से साफ कह दिया है कि हम अपनी तंजीम में किसी की मदाखलत नहीं चाहते। चूँकि इस्लाम को ख़त्म करना बहुत बड़ी नेकी है, इसलिए वो हमसे दूर रहकर नेकी कर सकते हैं।
हमारी ज़रूरत के वक्त हमें माली इमदाद दे सकते हैं, वरना हमारी तंजीम किसी की मोहताज नहीं। टेलीपैथी जानने वाले रॉकी हडसन ने कहा, जब हम यहाँ आए और काम शुरू किया तो हमें मंजिलें पा लेना आसान नज़र आया, लेकिन अब मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के अकाबरीन के दिमाग पत्थर कैसे हो गए। हमारी सोच की लहरें टकराकर वापस आ जाती हैं। अगर दो एक ऐसे हों तो सोचा जा सकता है कि वो योगा के माहिर हैं। बारबरा निक्सन इस इजलास में ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद थी। वो एक फादर की ज़ुबान से बोली, मैं बारबरा बोल रही हूँ। मैंने भी कई अकाबरीन के दिमागों में जाने की कोशिशें की, मगर नाकाम रही। ये सब के सब योगा के माहिर नहीं हो सकते। मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों ने इनके दिमागों को लॉक करके हमारा रास्ता रोक दिया है। रबी ने कहा, मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले फरहाद और उसके साथी ही हो सकते हैं। हमें ये मालूम करना होगा कि उन दुश्मनों में से कौन उज़्बेकिस्तान में मौजूद या मसरूफ़ है। बारबरा ने कहा, जेरी हॉक इस सिलसिले में छानबीन कर रहा है। जो भी मशकूक दिखाई देता है उसके दिमाग में झांक कर देख लेता है। मैं और रॉकी भी मुख्तलिफ दिमागों में जाते आते रहते हैं। आखिर किसी ना किसी के दिमाग में उसका सुराग ज़रूर मिलेगा। इजलास में गुफ्तगू हो रही थी। इसी दौरान जेरी हॉक ने हिंदू हिप्नोटिज्म करने वाले के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, महाशक्ति राज, हमारे साथियों से कहो, मैं तुम्हारी ज़ुबान से एक अहम खबर सुनाने आया हूँ। महाशक्ति राज ने कहा, आप लोग ज़रा खामोश हो जाएं और मुझ पर तवज्जो दें। जेरी हॉक मेरी ज़ुबान से एक अहम खबर सुना रहा है। जेरी ने कहा, और ये हम सब के लिए बुरी खबर है। फरहाद अली तैमूर कोई आधे घंटे में ताशकंद पहुंचने वाला है। क्या ये पक्की खबर है? जी हाँ, मैं इस फ्रांसीसी टीम के लीडर जैकी हार्प के दिमाग में था। जैकी हार्प अपने एक आदमी से कह रहा था, फरहाद साहब उसके जासूस बेबुला एंडरसन के मेकअप में रहेंगे और असल बेबुला चोर रास्ते से सरहद पार करके फ्रांस में वापस चला जाएगा। मैं पहले बयान कर चुका हूं कि मैंने कानूनी तौर पर उज़्बेकिस्तान में क़याम करने के लिए फ्रांस की एक सुराग रिसानों की टीम से राब्ता किया था और हमारे दरमियान ये तय पाया था कि मैं एक अहम फ्रांसीसी जासूस बेबुला एंडरसन की सूरत में वहाँ रहूँगा। मैंने बेबुला का बहरूप इख्तियार कर लिया था। फिर मुझे पता चला कि बेबुला दुश्मनों की एक आला कार लॉलिटा के इश्क में गिरफ्तार है। लॉलिटा का ताल्लुक उसी मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट से था। टेलीपैथी जानने वाले जेरी हॉक को यह अंदेशा पैदा हुआ कि मैं बेबुला बनकर लॉलिटा से इश्क करूंगा और उसके ख्यालात पढ़ूंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा कि लॉलिटा का ताल्लुक नए मज़हब दीने इंसान से है और इस मज़हब के पीछे 3 टेलीपैथी जानने वाले छुपे हुए हैं। उस राज के फाश होने से पहले ही जेरी ने लॉलिटा को कत्ल कर दिया और बेबुला के दिमाग में भी घुसकर उसे जिंदा जल जाने पर मजबूर कर दिया। इस इजलास में जेरी की रिपोर्ट सुनने के बाद सबने इत्तफाक़े राय से ये कहा कि ऐसी सूरत में लॉलिटा को मार डालना ही बेहतर था, वरना फरहाद इस तंजीम मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट की असलियत तक पहुंच जाता। जेरी ने कहा, फरहाद अभी बेबुला के रूप में है और इस गाड़ी में ताशकंद से वापस जा रहा है। उसे घेर कर कत्ल किया जा सकता है। रॉकी हडसन बोला, तुम मुझे गाड़ी के ड्राइवर के दिमाग में पहुंचाओ और अपने मुसल्ला अलाकारों से कहो वो उस गाड़ी का ताकुब करें। वो मुझे कत्ल करने के इस मंसूबे पर अमल करने लगे। ये भी मैं बयान कर चुका हूँ कि मैंने कैसी हिकमत अमली से अपनी जान बचाई थी। फिर मुझे ताशकंद वापस जाने के लिए कार्निवल के मालिक याकूब हमदानी की गाड़ी में लिफ्ट मिल गई। हमदानी ने बताया कि एक नामालूम शख्स उसे मजबूर कर रहा है कि उसके 6 आदमियों को कार्निवल में मुलाजमत दी जाए और उनके जाली कागजात बनवाए जाएं। उन कागजात से साबित हो कि वो 6 अफराद कई बरसों से कार्निवल के मुलाजिम हैं और उज़्बेकिस्तान के पैदाइशी बाशिंदे हैं। इससे साफ जाहिर था कि वो नामालूम शख्स किसी गैर मुल्क का एजेंट या किसी दुश्मन तंजीम का अहम फ़र्द है। चूँकि मुख्तलिफ ममालिक के जासूस और मुख्तलिफ दुश्मन तंजीमें उज़्बेकिस्तान पहुँची हुई थीं, इसलिए मेरे जहन में ये बात नहीं आई कि अपने 6 आदमियों को कार्निवल में छुपाने का इरादा करने वाला उसी मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट से ताल्लुक़ रखता होगा और वो टेलीपैथी जानने वाला रॉकी हडसन होगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रॉकी फ़ोन के ज़रिए याकूब हमदानी से गुफ्तगू करता होगा और उसके दिमाग में भी आता जाता होगा। ऐसी ही आमदोरफ्त के दौरान उसे मालूम हो गया कि मैं भी हमदानी के कार्निवल में पनाह लेने आया हूँ। मैंने उस कार्निवल में हमदानी के दुश्मनों को मार भगाया था। वो दुश्मन तो भाग गए, लेकिन रॉकी हडसन ने बड़ी कामयाबी से मुझे घेर लिया। कार्निवल के अहाते की 4 दीवारी पर उसके मुसल्ला आदमी खड़े हो गए थे। मेरे लिए कहीं से फरार का रास्ता नहीं छोड़ा था। मेरी पोजीशन ये थी कि मैं एक ऊंचे स्टेज पर खड़ा था।
स्टेज चारों तरफ से खुला हुआ था। यूं चारों तरफ से मुझ पर गोलियां बरसाई जा सकती थीं। मेरे बिल्कुल करीब हमदानी खड़ा था। रॉकी कह रहा था कि वो मुझे जान से नहीं मारेगा, सिर्फ जख्मी करके मेरे दिमाग पर कब्जा जमाएगा, फिर मुझे हमेशा के लिए अपना मामूल और ताबेदार बना लेगा। वो कार की छत पर गन लिए खड़ा था और मेरी तरफ उंगली उठाकर लोगों से कह रहा था, ये मौजूदा सदी का सबसे खतरनाक शख्स फरहाद अली तैमूर है। इसके सामने रूस और अमेरिका हार जाते हैं, हत्ता कि इसके पास आकर मौत भी हार जाती है। वो अपना सीना ठोंक कर कह रहा था, मैं पहला शख्स हूं कि इस टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग में जाकर अपनी ख्याल ख्वानी की हुकूमत कायम करने वाला हूं। उसने गन सीधी की, फिर मुझसे कहा, फरहाद, तुम ये मालूम करने के लिए बेचैन होगे कि मैं नया ख्याल ख्वानी करने वाला कौन हूं और किस मुल्क या किस तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूं। उसने मेरी एक टांग का निशाना लेते हुए कहा, मैं सिर्फ जख्मी कर रहा हूं, अगर ज़रा भी हिलोगे तो जान भी जा सकती है। मेरे पास खड़े हुए याकूब हमदानी ने कहा, तुम्हारा ये दुश्मन समझ में नहीं आया, जब ये तुम्हें जान से मार सकता है तो फिर जख्मी क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब मिलने ही वाला था। फायरिंग की आवाज़ गूंजी, गोली सनसनाती हुई आई। मैं एकदम उछलकर हमदानी पर आकर गिरा। एक चीख बुलंद हुई, फिर हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए स्टेज पर गिर पड़े। ये दुरुस्त है कि ये दुनिया एक स्टेज है। हम सब पैदा होकर मरने तक एक्टिंग करते रहते हैं, फिर स्टेज से हमेशा के लिए चले जाते हैं। दुश्मन जान ने मुझे हमेशा के लिए रुखसत नहीं किया। मैंने दिमाग में उसकी सोच की लहरों को सुना। वो कहे लगा रहा था और कह रहा था, मैं दुनिया का पहला ख्याल ख्वानी करने वाला हूं कि फरहाद के दिमाग में फतह के झंडे गाड़ रहा हूं। वो फिर एक बार कहा लगा कर बोला, अफसोस फरहाद, आज से तुम्हारी गुलामी का दौर शुरू हो रहा है। मैंने कराहते हुए पूछा, आह, मेरी टांग से गोली निकालो, बड़ी तकलीफ हो रही है। वो हंसते हुए बोला, गोली टांग से निकल जाएगी लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं निकलूंगा। तुम कौन हो? वो बोला, याद करो, आज से बहुत अरसा पहले तुमने अमेरिका में 3 ख्याल ख्वानी करने वालों को ट्रैप करके तारीक कमरों में कैद किया था और उन्हें तनवीमी अमल के जरिए अपना मामूल और ताबेदार बनाया था। क्या तुम्हें याद है? हाँ याद है। उनमें से एक ख्याल ख्वानी करने वाली का नाम बारबरा निक्सन, दूसरे का नाम जेरी हॉक और वो तीसरा मैं हूँ, रॉकी हडसन। बोलो, तुम्हारी ये बेचैनी दूर हो गई कि मैं कौन हूँ? और कुछ बताऊं? मैंने कहा, और ना बताओ, मैं बाकी मालूमात तुम्हारे दिमाग में आकर हासिल करूंगा। वो कहा लगा कर बोला, लंगड़ा घोड़ा कभी नहीं दौड़ता। जख्मी टेलीपैथी जानने वाला फरहाद मेरे दिमाग में ख्याल ख्वानी की दौड़ नहीं लगा सकेगा। मैं स्टेज के फर्श पर याकूब हमदानी के साथ जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और यही मेरी चाल थी कि मैं जख्मी नहीं था, जख्मी तो याकूब हमदानी था। अभी मैंने कहा था कि ये दुनिया तो एक स्टेज है। हम सब अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक एक्टिंग करते रहते हैं। इन लम्हात में मैंने भी एक्टिंग की थी। मैंने गोली चलाने वाले रॉकी हडसन की उंगली और ट्रिगर पर नजर रखी थी। जैसे ही उंगली ने ट्रिगर पर हरकत की, मैं उधर उछल पड़ा। मेरे पास खड़े हुए हमदानी की टांग में गोली लगी। उसे गोली खाकर गिरना ही था। इससे पहले ही मैं उछलकर उस पर आ गिरा, उसे लिपट कर स्टेज के फर्श पर गिर पड़ा। यूं मैंने फौरी तौर पर 2 मकासद हासिल किए थे। एक तो रॉकी को यह समझने पर मजबूर किया कि गोली मुझे लगी है और मैं हमदानी से टकराकर उसके साथ गिर पड़ा हूं। दूसरा फायदा यह हुआ कि मैंने गिरते गिरते हमदानी के कोट की अंदरूनी जेब से भरा हुआ रिवॉल्वर निकाल लिया। ये मैं उसकी सोच से मालूम कर चुका था कि उसने अंदरूनी जेब में रिवॉल्वर छुपा रखा है और उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि चारों तरफ से हम घिर गए थे। गोली लगते ही हमदानी चीख पड़ा था। वो लम्हाती चीख सुनकर रॉकी ये समझ ना पाया कि हमदानी जख्मी होकर चीख पड़ा है। रॉकी को तो ये सबसे बड़ा एजाज हासिल होने वाला था कि वो फरहाद के दिमाग के अंदर पहुंच गया है और मैंने उसे अपने दिमाग में आने की खुली छुट्टी दे दी। तकलीफ से कराहते हुए ये तासुर देने लगा जैसे गोली लगने की अजियत बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हूं। रॉकी अपनी जीत के नशे में सरशार था, कहे लगा रहा था और हकारत से कह रहा था कि आज से मेरी गुलामी का दौर शुरू हो रहा है। मैंने सिर्फ इतना मालूम किया कि उसके साथ 2 और ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। अब वो कहाँ हैं, क्या करते फिर रहे हैं, ये बातें वो कभी ना बताता। लिहाजा मजीद मालूमात के लिए उसके दिमाग में पहुंचना ज़रूरी हो गया था। मैं स्टेज के फर्श पर अचानक ही करवट बदलकर रॉकी की तरफ घूम गया। वो गाड़ी की छत पर गन लिए खड़ा था।
ठाई की आवाज़ के साथ गोली चलते ही वो उछलकर छत पर से नीचे ज़मीन पर आ गिरा। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे ज़मीन पर से उठाया। उसके मुसल्ला मातहत भी उसे सहारा देने आए थे। मैंने उसकी ज़ुबान से बुलंद आवाज़ में कहा, खबरदार, मेरे हुक्म के बगैर कोई गोली ना चलाए। तमाम दुश्मनों की गनें मुझ पर मरकूज़ हो गई थीं। रॉकी के एक हुक्म पर मुझे और हमदानी को गोलियों से छलनी कर दिया जाता, लेकिन रॉकी की ज़ुबान से खिलाफ तवक्को हुक्म सुनकर वो हमें निशाने पर रख कर साकित हो गए थे, जैसे बेजान मुजस्सिमे थे। सिर्फ रॉकी के इशारों पर कठपुतलियों की तरह हरकत कर सकते थे। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।